Good morning, students. So today we are going to discuss about judiciary, and in the judiciary we have already done many topics: appointment of the judges, what's the provisions in the constitution, and all these we have already discussed. And now the next topic which we are going on with, this is the removal of how can the judges of the Supreme Court be removed, कि कैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस. So in the removal we had discussed yesterday. Again I am briefing the things. First of all, which article covers the provisions regarding the removal of judges? So this is article number 124 in the article of the constitution, article 4 part 4. ठीक है, इतना ज्यादा पार्ट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है आपको इन स्टैंडर्ड 11th, but you have to keep remember the article number. Article number is 124, and the provisions have been covered in this article on the basis of Judges Inquiry Act 1968. 1968. Okay. On the basis of this Judges Inquiry Act 1968, the provisions for the removal of judges have been incorporated in the Constitution. And yesterday we have discussed what were the provisions. Now we'll see the provisions, we'll brief the provisions, though we have discussed yesterday in detail. Number one, first of all, proposal. Proposal. जब भी हम प्रपोजल की बात कर रहे हैं कि जस्ट टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जब भी हम इस प्रपोजल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, हु कैन इनिशिएट द प्रपोजल. कौन है जो प्रपोजल दिस काइंड ऑफ प्रपोजल को इनिशिएट कर सकता है? नंबर वन थिंग. सेकेंड, ऑन व्हाट ग्राउंड्स. Who and on what grounds? Okay. So first of all, we'll see the grounds. What are the grounds? On the grounds of not capability. If any judge of the Supreme Court is not capable enough. ठीक है, अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि भाई कोई जज ऐसा है, दे आर नॉट कैपेबल. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स यस्टरडे इन डिटेल. कल हमने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो आई वॉन्ट रिपीट द थिंग्स, बट यू हैव टू कीप रिमेंबर द ग्राउंड्स. और इफ द जज इज नॉट कैपेबल of delivering justice. Okay. And secondly, second ground may be impeachment और misbehavior, हम जिसको कह सकते हैं. ठीक है, impeachment or we can say misbehavior or incapacity. Misbehavior or incapacity. Okay. Clear? I hope the things are clear. What are the grounds? Grounds हमें clear है. We have discussed yesterday in detail. I won't repeat them again and again here. Now question arises, who can initiate the proposals? We have discussed this also in detail. I'm just going to brief so that we can start the next content today. Now, who can initiate the proposal? See, this proposal can be initiated either in either of the houses, in any of the houses of the parliament. किसी भी house में
in any of the houses, this proposal can be initiated. इसको initiate किया जा सकता है. अब अगर हम houses की बात कर रहे हैं, या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में. LS stands for लोकसभा, RS stands for राज्यसभा. कि या तो राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है या लोकसभा में, दोनों में से किसी भी एक हाउस में इसको इनिशिएट किया जा सकता है. ठीक है. नाउ इफ सेकेंड कंडीशन, if the proposal is being initiated in राज्यसभा, अगर इस प्रपोजल को हम इनिशिएट कर रहे हैं राज्यसभा के अंदर, then at least 50 members should sign on this. 50 members, or we could say 50 signatories must be there to raise this issue, to keep the proposal or to submit the proposal to the head, okay, in the Rajya Sabha. Got it? अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया जाएगा तो it will be submitted to the vice chairman, okay, and vice chairman is always the vice president of a country. Clear? तो how many members should sign on this? These are the 50 members at least इस पर जो है साइन करें. ठीक है, तब ये प्रपोजल इनिशिएट किया जा सकता है अगर ये राज्यसभा में इनिशिएट हो रहे हैं. इन द सेम वे अगर लोकसभा में इनिशिएट कर रहे हैं, then how many members signatures are required? At least 100 members. तो कम से कम कितने मेंबर्स के साइन होने चाहिए? 100 मेंबर्स के साइन इस पर होने चाहिए. 100 सिग्नेटरीज मस्ट बी देयर. ठीक है, तो ये तो हो गया हु कैन इनिशिएट द प्रपोजल. नाउ सपोज प्रपोजल हैज बीन इनिशिएटेड, तो व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप? If the proposal is in the Lok Sabha, then Speaker, or if the proposal has been initiated in the Rajya Sabha, then Vice Chairman or the Vice President. After the proposal, second step will be here. हम मानकर चलते हैं कि चाहे ये स्पीकर है या चेयरमैन, स्पीकर और चेयरमैन. ठीक है, it will be their duty after the proposal has been initiated, after the proposal has been submitted to them, either to the speaker or to the chairman, then they will fix the date and time. ये एक डेट एंड टाइम फिक्स करेंगे कि ये जो प्रपोजल इनिशिएट किया गया है या ये जो प्रपोजल सिग्नेटरीज ने सबमिट किया है, ठीक है, when to discuss, इस पर डिस्कशन कब होगा. ठीक है, वो एक डेट एंड टाइम क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे. ठीक है, आफ्टर दैट ये डेट और टाइम जो भी फिक्स होगा, व्हेन, ठीक है, आफ्टर दे फिक्स द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, it will be their duty, they are supposed to provide 14 days earlier. 14 डेज का एक प्रायर नोटिस, मतलब मोर देन 14 डेज भी हो सकता है, बट मिनिमम रिक्वायर्ड है कि कम से कम जिस जज के अगेंस्ट भी जो है ये सिग्नेटरीज ने प्रपोजल सबमिट किया है इम्पीचमेंट का, तो मिनिमम इज रिक्वायर्ड कि कम से कम 14 डेज का एक प्रायर नोटिस जो है जज को दिया जाएगा. ठीक है, सो दैट दे कुड काउंटर ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, मतलब वो भी अपना जो उनके वो इन सारी चीजों को काउंटर कर पाए. ठीक है, तो ऑल दीज आर दी प्रोसीजर्स फॉर द प्रपोजल. नाउ आफ्टर दैट हाउ कैन इट बी पास्ड? अब चलिए प्रपोजल आ गया, भाई जज को भी इंटीमेट कर दिया, तो क्या ऐसा जरूरी है? अभी तक पास नहीं हुआ है. ठीक है, तो व्हाट आर द कंडीशंस टू बी पास? तो पास करने के लिए इस तरह के प्रपोजल को क्या कंडीशंस है, क्या प्रोसीडिंग्स है इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि इस तरह का कोई भी प्रपोजल टू रिमूव द जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के किसी भी प्रपोजल को पास करने के लिए ऑलवेज ओनली एंड ओनली स्पेशल मेजॉरिटी वुड बी रिक्वायर्ड. स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, व्हाट इज दिस स्पेशल मेजॉरिटी?
देखो स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मींस सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। जैसे सिंपल मेजोरिटी मैंने पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आपको, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लोकसभा राज्यसभा, ये सब हमने पढ़ा है। उस टाइम पर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो हो गई आपकी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है अगर सपोज 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 100 मेंबर्स में से 50 प्लस 1, 51, ये आपकी सिंपल मेजोरिटी होगी। गॉट इट? ये मैंने पहले भी समझाया था आपको। गॉट इट? विद द एग्जाम्पल्स हमने समझा था चीजों को उस टाइम पर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। मैंने बार बार आपसे पूछा था इतने मेंबर्स हैं तो बताइए सिंपल मेजोरिटी कितनी हो गई, स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी, ठीक है। तो आई वॉन्ट रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको दोबारा से याद दिलाने के लिए मैंने बोल दिया। एंड देन सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 मेंबर्स, ठीक है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, ओनली इन दैट केस माना जाएगा कि जो प्रपोजल है दैट हैज बीन पास्ड, और वो जो है पास हो गया है, ठीक है। तभी हम उसको कह पाएंगे कि यस वी हैव रिमूव्ड एनी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पीचमेंट or not capability, whatsoever the grounds had been raised by the parliamentarians, by the signatories in either of the houses, only then we could say that the judge may be removed on these grounds. And one thing more important here, okay, what is that? I said you कि that is special majority and all these. अब जो याद रखने वाली चीज है, जो समझने वाली चीज है आपके, देखिए यार, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, वी हैव डिस्कस्ड कि जो प्रपोजल है, प्रपोजल टू रिमूव अ जज, ठीक है, किसी भी जज को रिमूव करने के लिए कोई भी प्रपोजल आएगा, इन ईदर ऑफ द हाउस आएगा, ईदर ऑफ हाउसेस मींस या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, दोनों में से कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है, पढ़ा हमने अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपके समझने वाली है, सपोज राज्यसभा ने प्रपोजल इनिशिएट किया, ठीक है, और एनी हाउ कुछ ऐसा हुआ कि भाई जज के अगेंस्ट कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि वो नहीं काउंटर कर पाए या नहीं अपना फेवर दे पाए, तो एनी हाउ क्या हुआ, ये पास हो गया, सपोज ये राज्यसभा में पास हो गया। अब हम मानकर चलते हैं कि ये जो राज्यसभा ने प्रपोजल पास कर दिया, ठीक है, ये जो मोशन पास हो गया, ये टाइम था हमारा दिसंबर, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर 2020 चल रहा है, इसी को ले लेते हैं 2021। दिस वाज द टाइम, मतलब दिसंबर 2020 था। अगर हम इसको सेशन माने तो ये एक सेशन माना जाता है, मतलब एवरीवन नोज दिस कि 2021 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये मानकर अगर हम चलते हैं, वैसे वो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। सपोज हमने एक सेशन मान लिया कि दिसंबर 2020 में जो था ये इनिशिएट हुआ और राज्यसभा ने इसे पास कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि अगर राज्यसभा ने इसे ड्यूरिंग दिस सेशन पास किया है, 2021 सेशन चल रहा है ये, तो जो हमारा लोकसभा है या जो हमारा दूसरा हाउस है, ठीक है, दे आर बाउंड टू पास दिस इन द सेम सेशन। उन्हें क्या करना पड़ेगा, इसे सेम सेशन में ही इसको पास करना पड़ेगा। इट मींस ये पास हुआ, लोकसभा में गया, ठीक है। अब लोकसभा में इसमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, लेकिन एनी हाउ हुआ क्या, अगर हम इस सेशन की बात करें तो ये सेशन कब कंप्लीट होगा बेटा, मार्च 2021 में। हम एक जैसे सेशन मानकर चल रहे हैं, तो ये जो सेशन है कंप्लीट हो जाएगा मार्च 21 में। तो लोकसभा बाउंड होगी कि बिफोर मार्च 21 लोकसभा को क्या करना पड़ेगा,
अगर लोकसभा भी इसे पास कर देती है, ठीक है, तो जो दूसरा हाउस है, दूसरा हाउस बाउंड होगा सर्टेनली टू पास द सेम मोशन बिफोर मार्च 21, मार्च 21 से पहले पहले, ठीक है, और विद इन मार्च 21 तक, जब तक ये टाइम पीरियड पूरा होता है तब तक लोकसभा बाउंड है इसको पास करने के लिए। और अगर ये सेशन निकल गया, सपोज ये सेशन निकल गया, लोकसभा इसको पास नहीं कर पाई, तो इट वॉन्ट बी पास्ड, तो ये प्रपोजल पास नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जज कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, फ्रॉम द प्रोफाइल, ठीक है, हम उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक अपने हिसाब से पॉइंट बना लीजिए कि इफ एनी ऑफ द हाउस पास द मोशन अगेंस्ट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन अदर हाउस विल बी बाउंड टू पास इट विद इन द सेम सेशन। दूसरा हाउस बाउंड है, सपोज लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास किया, अब राज्यसभा को टाइम नहीं मिला उस पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस का, एनी हाउ राज्यसभा नहीं कर पाई उसको पास, तो क्या हुआ, सेशन गॉन, सेशन गॉन, तो जज वुड रिमेन ऑन द सीट, ठीक है, तो आप जज को क्या है, रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर? तो ऑल दीज आर दी प्रोविजंस फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब यहाँ पर हम एक चीज अच्छा कंपेयर करेंगे, वी वुड लाइक टू कंपेयर रिमूवल, किस किस का रिमूवल हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, हम उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो, यू रिमेम्बर। तो यहाँ पर एक चीज हम कंपेयर करके देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप इस पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, कई बार आता है कंपेयर करने के लिए, इवन कॉम्पिटिशन्स में भी आता है खूब ये, ठीक है। तो क्या है रिमूवल ऑफ जज, है ना, ये जज का जो रिमूवल है, रिमूवल इधर हम लिख लेंगे जज सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हम रिमूव करते चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हमने अभी पढ़ा, और यहाँ पर हम रिमूव करते चलेंगे प्रेसिडेंट को। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों के ग्राउंड सेम है, यू रिमेम्बर, जरा याद करो, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्राउंड दोनों के सेम है ना, इम्पीचमेंट, क्लियर, और इम्पीचमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ग्राउंड्स की बात करें जज के रिमूवल की, जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट और जज के अगर हम रिमूवल की बात करते हैं, तो ग्राउंड्स दोनों की सेम ही है लगभग, ठीक है। प्रेसिडेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रपोजल किस ग्राउंड्स पर लिया जा सकता है, पहली चीज, चलो पहले हम लेते हैं ग्राउंड्स दोनों की, नंबर वन, दोनों को हम कंपेयर करते चलते हैं। जज के रिमूवल की बात करते हैं ग्राउंड्स की, मिसबिहेवियर, मतलब इम्पीचमेंट आप उसको कह सकते हैं, इम्पीचमेंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IMPECA, इसको आप इम्पीचमेंट है ये। प्रेसिडेंट का भी रिमूवल हम इम्पीचमेंट, मेनली जो इम्पीचमेंट होगा वो होगा अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उन्होंने किसी भी तरह का कोई इम्पीचमेंट किया है। सेकेंडली हम देखते हैं, दोनों को थोड़ा सा एक कंपेयर करके चल रहे हैं कि ये कंपेरेटिव एनालिसिस है, ये हमारे अपनी नॉलेज के लिए है और ये हमारे एग्जाम के लिए भी है, ठीक है, कि एक कंपेरेटिव एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है ट्रू फॉल्स में, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कई मैक्सिमम टाइम्स तो ऐसा होता है कि कंफ्यूजन में वो क्वेश्चन ही गलत उसको आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो मिसबिहेवियर, इम्पीचमेंट, बोथ दी ग्राउंड्स आर सेम, दोनों के लिए ग्राउंड सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर जज की बात करते हैं, किसी इन ईदर ऑफ दी हाउसेस, ठीक है, किसी भी हाउस में इसको जो है रेज किया जा सकता है, ईदर हाउस, मैं इसको शॉर्ट में ईदर हाउस लिख रही हूँ,
ठीक है, ईदर हाउस LS RS, लोकसभा एंड राज्यसभा। गॉट इट। इन द सेम वे अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के केस में भी क्या है, सेकंड, ईदर हाउस, ये भी किसी भी हाउस में रेस किया जा सकता है प्रपोजल। प्रेसिडेंट को भी रिमूव करने के लिए जो प्रपोजल है, इट कैन बी रेज्ड इन एनी ऑफ द हाउसेस, इन ईदर ऑफ द हाउसेस, किसी भी हाउस में हम उसको रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है यहाँ अगर जज को रिमूव करने की बात करते हैं तो लोकसभा में कितने सिग्नेटरीज होने चाहिए, एटलीस्ट 100, और राज्यसभा में 50। ठीक है, और प्रेसिडेंट को अगर हम रिमूव करने की बात करते हैं तो यहाँ हमें चाहिए 1/4 मेंबर्स, और वी कुड से 1/4 का मतलब हो गया कि 25 4 100, तो इसका मतलब हो गया 25% फ्रॉम बोथ दी हाउसेस, दोनों हाउसेस से। समझ में आ गई बात, फ्रॉम बोथ हाउसेस। ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिग्नेटरीज साइन करेंगे। ठीक है, सिग्नेटरीज विल बी देयर, नंबर ऑफ मेंबर्स मेंशन्ड है, और यही सेम केस अगर प्रेसिडेंट के केस में है तो वहां पर हमें कम से कम क्या चाहिए, एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स का जो है इस फेवर में होने चाहिए, इस प्रपोजल के फेवर में होने चाहिए। 1/4 की बात करें तो एटलीस्ट 25% मेंबर्स ऑफ फ्रॉम बोथ दी हाउसेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम जज की बात करते हैं, ठीक है, तो जज जज के केस में भी क्या होता है कि हम 14 डेज अर्लियर उनको प्रायर नोटिस दे रहे हैं, भाई उसने, स्पीकर ने क्या किया, वहां पर जो है स्पीकर या चेयरमैन है, ठीक है, दोनों ने क्या किया, डेट एंड टाइम फिक्स किया, सेम है, चलो गुड, ये दोनों के केस में सेम है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही ले आती हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दोनों सेम है, गॉट इट, कि दोनों ने क्या किया, डेट एंड टाइम फिक्स कर दिया। देन नंबर 4, 14 डेज का टाइम दोनों को मिला, मैं शॉर्ट में इसको 14 डेज लिख रही हूँ। ठीक है, 14 डेज का एक प्रायर नोटिस दोनों को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जज को भी और द प्रेसिडेंट को भी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये प्रपोजल पास कैसे होगा, दोनों के केस में हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब मैं जरा इसमें आई जस्ट क्लियर ऑल दिस, ये सारी चीजें आई होप एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ डिफरेंस है। याद रखिएगा, इन द केस ऑफ द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, if in Lok Sabha 100 signatories are required, if in Rajya Sabha then 50 signatories are required. Okay, in the case of president, 1/4 members must get agreed on the proposal. 1/4 की अगर हम बात करें तो 25 4 100, तो कितना हो गया, 25% फ्रॉम बोथ दी हाउसेस मिनिमम। ठीक है, जो कि उस पर अग्रीड अपॉन होने चाहिए अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, कि यस ही इज अंडर द केस ऑफ इम्पीचमेंट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं 14 डेज के प्रायर नोटिस तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली जो पास होगा प्रपोजल, ये है नंबर 5। अब ये प्रपोजल इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, हमने पहली बात की है, इसमें हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन द केस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए we always want the special majority, means simple majority plus two-third of the members present and voting, जो कि प्रेजेंट भी हैं और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वोटिंग भी कर दें। ठीक है, तब ये कहीं जाकर किसी हाउस में इस प्रपोजल को पास माना जाएगा। ठीक है, गॉट इट। देन उसके बाद आ जाते हैं प्रेसिडेंट पर। उसके बाद लिसन, स्पेशल मेजोरिटी हो गई, एक स्पेशल कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि अगर किसी एक हाउस में अगेंस्ट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रपोजल पास हो जाता है जस्ट टू रिमूव द जज, तो दूसरा हाउस बाउंड है
अदर हाउस इज बाउंड टू पास इट इन द सेम सेशन, ठीक है, सेम सेशन में उसको पास करने के लिए बाउंड है। उसके बाद अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें हमें टोटल पास करने के लिए चाहिए 2/3 मेंबर्स, कि जो 2/3 मेंबर्स हैं वो जो है इसको पास कर दे। क्लियर, गॉट इट। तो 2/3 की अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के लिए तो सपोज 543 मेंबर्स हैं, तो इनटू 2/3 इसका नंबर आप निकाल लीजिए। एंड इन राज्यसभा अगर हम देखें तो 245 अगर हम मानकर चलें, 245 अपॉन 2/3 इसका निकाल लीजिए। तो कम से कम इतने मेंबर्स जो हैं इस प्रपोजल को पास कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस वाज द कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर द removal of the president and the judge. I hope the things are clear. Okay. Now here we'll see the examples. कुछ अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम इंडिया की बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, या इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो क्या कभी ऐसा टाइम आया है कि किसी जज को रिमूव करने के लिए क्या इस तरह का कोई भी प्रपोजल इनिशिएट किया गया है पार्लियामेंट में या नहीं? ठीक है, तो अब हम इस चीज को देखेंगे कि ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, या क्या ग्राउंड से प्रपोजल पास हुआ भी या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। पॉलिटिकल साइंस में देखो बहुत एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, तभी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, सो नाउ विल सी द एग्जाम्पल। तो देखो, इट हैज बीन हैपेंड 2 टाइम्स, ऐसा हुआ है। देखो 2 टाइम्स होता है सब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वी हैड सीन कि एक्सेप्शंस हुए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हम पढ़ रहे थे, एंड यू रिमेंबर 1973 एंड 1975, याद आए ये 2 ईयर, these 2 years। 1973 में ए एन रॉय को चीफ जस्टिस बना दिया गया था, है ना। प्रोविजन क्या था कि सीनियर मोस्ट, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। बट व्हाट हैपेंड इन 1973 1975, कुछ गवर्नमेंट के साथ ऐसे कंट्रडिक्शंस चल रहे थे कि एनी हाउ द डिसीजन वाज टेकन कि जो इनसे 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको इग्नोर करके और क्या किया गया, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। 1975, this is the year of emergency. We are studying this again and again. So in 1975, Mr. M.H. Beg, किसको, कौन से थे इनसे पहले जो सीनियर मोस्ट जज थे, फर्स्ट नंबर पे वो थे मिस्टर एच.आर. खन्ना। एच.आर. खन्ना को सुपरसीड करते हुए और एच.आर. खन्ना को इग्नोर करते हुए मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को जो था 1975 में इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया। तो दीज 2 वर दी एक्सेप्शंस। हमने ये 2 एक्सेप्शंस पढ़े थे ना, याद आ गया होगा आपको, बहुत डिटेल में हमने थोड़ा सा चीजें डिस्कस की थी। आई होप ऑल ऑफ यू कीप रिमेम्बर। देन नाउ अब हम देखेंगे कि जुडिशरी में अगेन ऐसा कब हुआ, जब हम रिमूवल ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं। तो एक ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, तो वहां पर भी ऐसी क्या कंडीशंस अराइज हुई कि रिमूवल ऑफ द जज के लिए भी प्रपोजल जो था इनिशिएट किया गया। वो एक डिफरेंट मैटर है, पास हुआ या नहीं हुआ वो एक डिफरेंट मैटर है ना। तो हम दोनों ही चीजों को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट ऑफ 2 केसेस हैड बीन देयर, 2 केसेस ऐसे हुए जहां हम बात कर रहे हैं इनिशिएशन की। मैं पास की बात नहीं कर रही हूँ कि मोशन पास हो गया था या प्रपोजल इनिशिएट किया गया और प्रपोजल हैड बीन पास्ड, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। आई एम जस्ट सेइंग इट वाज इनिशिएटेड, इसको इनिशिएट किया गया था। ठीक है, तो एग्जांपल्स में विल डिस्कस इनिशिएटेड ओनली। इनिशिएटेड, तो इनिशिएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी नंबर 1
एक केस हुआ हमारा 1991 टू 1993। उस समय जो हमारे जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनका नाम था वी रामास्वामी। इनके अगेंस्ट प्रपोजल इनिशिएट किया गया था 1991 1993 का ये टाइम था। और उसके बाद अभी रिसेंटली शायद आप लोगों को याद होगा 2018 में, दिस इज द ईयर 2018 में जो हमारे जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, ठीक है, दीपक मिश्रा जी, ठीक है, इन 2018। तो 2018 में दीपक मिश्रा जी के अगेंस्ट जो था प्रपोजल इनिशिएट किया गया, प्रपोजल फॉर द इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रपोजल जो था रेस हुआ। डी रामास्वामी विल डिस्कस इन डिटेल बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ आवर एनसीईआरटी, और शायद दीपक मिश्रा का खाली उन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ है, तो दीपक मिश्रा को मैं फटाफट शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, देन विल डिस्कस वी रामास्वामी इन डिटेल। तो इन 2018 जो दीपक मिश्रा जी थे बेटा, 2018 में इनके अगेंस्ट जो मोशन रेज हुआ, जो प्रपोजल रेज हुआ, वो हुआ राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रपोजल रेज हुआ, और राज्यसभा में हाउ मेनी सिग्नेटरीज आर रिक्वायर्ड? अप्रॉक्स 50 मेंबर्स सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, बट यहाँ पर 71 मेंबर्स ने इस पर साइन कर दिए थे। 71 signatories had been there against Deepak Mishra, और राज्यसभा में इस प्रपोजल को इनिशिएट किया गया। एंड ऑल दीज 71 पार्लियामेंटेरियंस, मतलब ये जो राज्यसभा के मेंबर्स थे, इन्होंने इनिशिएट किया, और इन 71 मेंबर्स ने इस प्रपोजल को सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट। मतलब सॉरी, आई एम जस्ट टॉकिंग, इफ आई एम सेइंग प्रेसिडेंट तो मींस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, है ना। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। टू चेयरमैन। अब ये जो चेयरमैन थे ये थे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन थे इस समय? वेंकैया नायडू, ठीक है। ये जो चेयरमैन थे राज्यसभा के, ये थे वेंकैया नायडू। इन्होंने इनिशिएट किया प्रपोजल अगेंस्ट दीपक मिश्रा, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो, सेम प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। 71 मेंबर्स ने साइन किए, 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। इन्होंने जो था, जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर वेंकैया नायडू, उनको प्रपोजल सबमिट किया आफ्टर दे हैड साइंड ऑन दिस। और उन्होंने जब साइन करके वेंकैया नायडू जी को सबमिट किया, तो अब वेंकैया नायडू जी का काम क्या था कि उन्हें क्या करना था, एक फिक्स डेट एंड टाइम देना था फॉर द डिस्कशन ऑन दिस इश्यू। ये जो प्रपोजल रखा गया कि भाई अब हम इस प्रपोजल पर एट द फिक्स्ड स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पर हम क्या करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। बट व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? वेंकैया नायडू जी ने क्या किया? ही डिडंट रेज द इश्यू इन दी राज्यसभा। उन्होंने इस इश्यू को राज्यसभा में इसे रेज ही नहीं होने दिया, मतलब इसको रेज ही नहीं किया। देखो, इसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो दीपक मिश्रा जी को फेवर कर रहे हैं। किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम अपने कंट्री की भी बात करें, तो एज बीइंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी क्या है? एक तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने होते हैं। तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे या जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा थे, उन्होंने क्या किया, अपनी थोड़ी सी एक समझदारी से जो था उसको अवॉइड किया इस चीज को कि भाई किसी भी जज के अगेंस्ट जो है इस तरीके का, और ये जो 71 मेंबर्स हैं दे आर साइनिंग, तो इट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। या कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि भाई इट्स नॉट गुड, दैट्स व्हाई ही डिडंट रेज द इश्यू इन द राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पर वेंकैया नायडू जी ने, अब इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें केस था, बहुत ही फेमस केस था, लोया केस था। लोया केस क्या था? 2014 में एक सीबीआई के जो जज थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उस पर कुछ चार्जेस वगैरह थे। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि भाई दीपक मिश्रा जी ने शायद कहीं ना कहीं कुछ फेवरेटिज्म के बेस पर जो है, मतलब बायस्ड होकर उसमें जजमेंट दिया गया।
कुछ इस तरह का इश्यूज था उसमें, उसको हम यहाँ इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कभी मौका लगेगा तो हम क्लास में आफ्टर वी कंप्लीट द सिलेबस तो हम डिस्कस कर सकते हैं चीजों को, बट लेकिन बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि भाई ठीक है, दीपक मिश्रा वाज द जज और 71 मेंबर्स ने साइन करके राज्यसभा से इस प्रपोजल को सबमिट किया। और यहाँ पर जो वेंकैया नायडू जी थे उन्होंने इस इश्यू को रेज नहीं किया राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कोई इसके लिए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम नहीं दिया गया। गॉट इट? आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर। तो नाउ वी कम ऑन वी रामास्वामी। ये हमारे एनसीईआरटी में डिटेल में है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो वी रामास्वामी के अगेंस्ट जो था, हम ये कह सकते हैं कि ये जो अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, ये अटेम्प्ट तो हुआ, attempted but failed, ये फेल हो गया। अब इसके फेल होने के पीछे रीजंस क्या थे, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन उठता है कि ये अटेम्प्ट क्यों हुआ, मतलब इसे इनिशिएट किस ग्राउंड पर किया गया, है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है ये कि भाई हमने, मतलब जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने इसे इनिशिएट ही क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना ये था, बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊंगी आपको। ये जो पार्लियामेंटेरियंस थे इन्होंने इनिशिएट किया इस ग्राउंड पर, इनका कहना ये था कि जब जस्टिस वी रामास्वामी जब ये हाई कोर्ट के जज थे, ये कौन सा हाई कोर्ट था, ये था पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। जब ये पंजाब एंड हरियाणा के जो थे हाई कोर्ट के जब ये जस्टिस थे, तो यहाँ पर जो था ही वाज फाउंड गिल्टी, ठीक है। इनको गिल्टी किया गया था कि इन्होंने अपने ऑफिस का विलफुल और ग्रॉस मिसयूज किया है, मतलब विलफुली मींस कि इंटेंशनली इनका जो ऑफिस ऑफ जस्टिस था, ठीक है, जजेस ऑफिस का जो था, इन्होंने विलफुली मींस कि इंटेंशनली, वो अनइंटेंशनली नहीं था। मतलब ऐसा इन सिग्नेटरीज का कहना था, इन्होंने जो प्रपोजल इनिशिएट किया, मतलब ये एलिगेशंस इन्होंने जो थे इम्पोज किए थे कि जो वी रामास्वामी जस्टिस थे, इन्होंने क्या किया था अपने टेनर में, जब ये हाई कोर्ट के जज थे, तो इन्होंने जो था फंड्स का, इन अप्रोप्रिएट फंड्स को जो था, मतलब फंड्स को मिस अप्रोप्रिएटली यूज किया था, ठीक है। एक्यूज, तो इनको एक्यूज किया गया, एक्यूज ऑफ, मैं इसको यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, एक्यूज ऑफ मिस appropriating funds, ठीक है, कि इनको जो था इस चीज के लिए एक्यूज किया गया और बोला गया कि भाई इन्होंने जो था मॉरल ग्राउंड्स पर जो था, मॉरल ग्राउंड्स पर इनका जो ये टेनर था ये नहीं रहा, और इन्होंने पब्लिक फंड को जो था प्राइवेट पर्पसेस के लिए जो था यूज किया था। क्लियर? एंड यू वुड बी सरप्राइज कि ये जो प्रपोजल इनिशिएट हुआ, इस पर साइन हुए थे कितने मेंबर्स के, 108 मेंबर्स ने इस पर साइन किए थे। ये नंबर आपको याद है। हाउ मेनी सिग्नेटरीज वर देयर? 108 मेंबर्स, ठीक है। लेकिन बट व्हाट हैपेंड, इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने के बावजूद भी, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट होने के बावजूद भी जो रामास्वामी थे, ही सर्वाइव्ड दिस पार्लियामेंट्री मोशन रिकमेंडिंग द रिमूवल। मतलब ये जो मोशन है, कितना स्ट्रॉन्ग मोशन उनके अगेंस्ट पास हुआ, उसके बावजूद भी ही कुड सर्वाइव, वो सर्वाइव कर गए। अब उसका रीजन क्या था? रीजन वाज, अब आप देखो प्रपोजल पास कब होगा, टू कंडीशंस है, सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी, है ना। दीज आर दी टू कंडीशंस ना। 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, मींस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी तो एक कंडीशन है। सिंपल मेजोरिटी है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट प्रेजेंट एंड वोटिंग भी तो चाहिए, 2/3 मेजोरिटी भी तो चाहिए, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, व्हाई कुड वी रामास्वामी सर्वाइव दिस स्ट्रॉन्ग प्रपोजल? इतना एक स्ट्रॉन्ग मोशन होने के बावजूद भी वो क्यों सर्वाइव कर गए?
उसका रीजन ये था कि अब रिक्वायरमेंट थी, 108 मेंबर्स ने साइन करके दिया, डिबेट्स हुआ, डिस्कशंस हुए, फिक्स डेट एंड टाइम भी हो गया, सारी चीजें हो गई पार्लियामेंट में, ठीक है। अब लेकिन जब फाइनली ये प्रपोजल पास होना था, जब इसके पास करने का नंबर आया, तो सिंपल मेजोरिटी थी, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया मीट करना था वो था 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जो 2/3 मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये क्राइटेरिया भी तो फुलफिल करना है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि प्रेजेंट एंड वोटिंग में ये जो 2/3 मेंबर्स थे, यहाँ पर प्रेजेंट में कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे, दे एब्सेंट देमसेल्व्स, किसी भी एक मेंबर ने भी क्या किया, वी रामास्वामी के अगेंस्ट वोट नहीं किया, ठीक है। तो ये जो मोशन था ये पास नहीं हुआ, लेकिन ये बिल्कुल पास होने वाली पोजीशन तक ये बिल्कुल पहुंच गया था, ठीक है। तो जब फाइनल डे आया इसके पास करने का, तो पार्लियामेंट में जो फर्स्ट था वो तो मीट हो गया, सिंपल मेजोरिटी 50+1, ठीक है। लेकिन जो सेकंड क्राइटेरिया था, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल होना है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने हैं, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया जब फुलफिल होने हैं, तो जो 2/3 मेंबर्स थे प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग वालों में जो था, दिस क्राइटेरिया वाज नॉट फुलफिल्ड। यहाँ जो सारे कांग्रेस के मेंबर्स थे, जो कांग्रेस थी, ठीक है, उन्होंने जो था एब्सटेंड किया फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट वी रामास्वामी, और ये जो मोशन था ये पास होने से रह गया, ठीक है। तो वी रामास्वामी के अगेंस्ट भी किसी भी तरह का कोई भी इम्पीचमेंट प्रपोजल जो था वो पास नहीं हुआ, इनिशिएट तो हुआ लेकिन पास नहीं, ठीक है। तो ऐसा 2 टाइम्स हुआ है। फर्स्ट ये हुआ 1991 1993 का केस था ये। उसके बाद 2018 में अभी रिसेंटली हमारे सामने एक केस आया था दीपक मिश्रा जी का। तो 2 टाइम्स ऐसा जुडिशियल हिस्ट्री में हुआ है, जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि इम्पीचमेंट प्रपोजल फॉर द इम्पीचमेंट अगेंस्ट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट प्रपोजल भी इनिशिएट किया गया हो, लेकिन पास नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, ठीक है। इनिशिएट हुआ है, पास नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, अब हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, देखो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी हमेशा क्या होता है, इसको हम हमेशा बोलते हैं दिस इज द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको बार बार जो है इसको हम सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी से दैट दिस इज द सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। हाउ कैन वी से सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हाउ कैन वी से दिस, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, जरा बताओ मुझे भाई, कैसे कह सकते हैं हम दैट दिस इज द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो हाउ कैन वी से, इट मीन्स, इसको समझने के लिए, ठीक है, हम अपने कंट्री के सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक बार जरा बात कर लेते हैं यूएस के फेडरल कोर्ट्स की।
व्हाट डू वी, जो यूएस के फेडरल कोर्ट्स हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो यूएस है, यूएस इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फेडरेशंस, जैसे हमारे इंडिया में भी है ना, डिफरेंट फेडरेशंस है, फेडरेटिंग यूनिट्स है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स, है ना। तो इन द सेम वे यूएस का जो फेडरल कोर्ट है, वहां पर फेडरल कोर्ट होता है, ठीक है। एंड एवरी फेडरल कोर्ट इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। हर फेडरल कोर्ट जो है, आप अगर मैं फेडरल कोर्ट की बात कर रही हूँ यूएस के, तो आप इंडिया के रेफरेंस से अगर आप समझेंगे तो आप समझ लीजिए कि ऑल दीज आर दी हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें, ठीक है। समझते हुए चलो जरा चीजों को, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है, अगर हम यूएस के फेडरल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यूएस का फेडरल कोर्ट का मतलब हो गया, अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया के रेफरेंस में ये हमारा हो जाएगा, मैं इसको जरा एक ट्रायंगल बना के समझाती हूँ आपको, ऐसे ये इंडिया के रेफरेंस में है, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ इंडिया की, यहीं पर हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब अगर हम यूएस के सिस्टम की बात करें, तो यूएस के सिस्टम में क्या है, जैसे आप यहाँ पर एक चीज समझो कि ये जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ कहलाते हैं फेडरल कोर्ट। यूएस में क्या कहलाते हैं, यूएस में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डिवीजन है, हर स्टेट में उनका अपना एक फेडरल कोर्ट है, ठीक है। तो यूएस में क्या है, जो डिसीजन ये फेडरल कोर्ट दे देगा, ठीक है, तो दे आर वेरी पावरफुल। पावरफुल इन द सेंस कि जो डिसीजन उनके हाई कोर्ट ने दे दिया, उनके फेडरल कोर्ट ने दे दिया, दैट विल बी द सुप्रीम, ठीक है। वो उसके अगेंस्ट जाकर कहीं किसी और कोर्ट में जो है अपील नहीं कर सकते। यही चीज अब अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें, तो इंडिया में सपोज कोई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड नहीं है उस डिसीजन से, तो हम क्या करते हैं, हम किसी ने, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, हमने अपील कर ली सुप्रीम कोर्ट में। गॉट द पॉइंट, ठीक है, ध्यान से समझिए पॉइंट को। तो हाई कोर्ट ने अगर कोई भी डिसीजन सही नहीं दिया है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, वहां से परमिशन लेकर हाई कोर्ट से वो हमें अलाउ कर देते हैं कि हाँ, हम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ वी आर नॉट कन्विंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर क्या होता है, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। यह कंडीशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो फ्री। सुप्रीम कोर्ट को अगर ये कहीं भी लगता है कि भाई हाई कोर्ट के जो है बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, जहां पर मैटर्स फंस रहे हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है हाई कोर्ट की कि भाई एक काम करो, ये केस हमारे पास भेज दो, हम इसको देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। इसी इन द सेम वे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर नहीं दे पा रहा है तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इंडिया का जो सिस्टम है, दैट इज नोन एज द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। एंड आई होप कि आप इस पर आराम से आप इसको अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।